چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹ پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس ایک نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں ان کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنا نام بتائیے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ سید محیب الطاری۔ سید محیب الطاری، ماشاءاللہ۔ جی، اور آپ کا نام؟ محمد زین۔ محمد زین، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس۔ محمد اویس، ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ عبد القادر۔ عبد القادر۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ حسنین رضا۔ حسنین رضا، ماشاءاللہ، سب کے بڑے ہی اچھے نام ہیں۔ جی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد حنین رضا الطاری۔ محمد حنین رضا الطاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آئیں میں آپ کو ایک ایسی دعا پڑھاتا ہوں جس دعا کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو پڑھنے میں شریک رہیے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم 29 عربک الفابیٹس یعنی حروف مفردات مکمل پڑھ چکے تھے۔ ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے، جو ملتی جلتی آواز والے ہیں۔ تو اب سے ہم وہ حروف سیکھیں گے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو آج کے حروف شروع کرنے سے پہلے ہم کل والے حروف دہرا لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ ان حروف کو مل کر پڑھیے۔ پیارے بچوں، ہمارا پہلا حرف تھا واو۔ کیا تھا؟ واو۔ جب ہم اسے پڑھیں گے تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے، واو۔ واو۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا۔ کیا ہے؟ ہا۔ 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 پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ 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 پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا۔ کیا ہے؟ یا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے حرف پڑھا حمزہ۔ یہ ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔
جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آئے گی، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ. یعنی اسے پڑھیں گے آ اور اسے پڑھیں گے آ. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ آج کے ہمارے حروف مکمل ہوئے. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ ہمزہ کی 4 آیات پڑھنا سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم 5ویں آیت سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. اور اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس واو کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس واو کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. یعنی یہاں پر واو متحرک ہے، یہاں بھی واو متحرک ہے اور یہاں بھی واو متحرک ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب جس حرف پر حرکت ہو تو اسے ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر یا پیش ہو تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے ہم کھینچ کر جھٹکا دی کر نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے. واو زبر وا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. واو زبر وا. واو زیر وی. واو زیر وی. واو پیش وو. واو پیش وو. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. جی اویس بھائی آپ بتائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے. جی عبد القادر بھائی آپ بتائیے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. متحرک کہتے ہیں. بالکل درست جواب. جی حنین بھائی آپ بتائیے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم پڑھیں گے کس طرح؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا انہوں نے کہ ہم حرکت والے حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. جی محیب بھائی آپ بتائیے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حرکت والے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے تو یہاں پر ان حروف کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ واو زبر وا. واو زیر وی. واو پیش وو. وا وی وو. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ادائیگی کی آپ نے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم. کیا ہے؟ میم. اور میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف. پیارے بچوں الف جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مدہ. اور حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. الف الف. الف الف. واو واو. واو واو. یا یا. 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 یہ 3 حروف جو ہیں یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. اب حروف مدہ یعنی الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ ہوں گے کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا. اور اس کے بعد واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. اب حروف مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. جی ہاں یعنی اسے ہم اس طرح پڑھیں گے میم الف زبر ما. میم الف زبر ما. میم واو پیش مو. میم واو پیش مو. میم یا زیر می. میم یا زیر می. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی.
जी हसनैन भाई आप बताइए कि हुरूफ मद्दा कितने हैं? हर्फ मद्दा 3 है, कौन कौन से? अलिफ, वाव, या। माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने। जी जैन भाई आप बताइए कि हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। अब हुरूफ मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह, कौन बताएगा? जी हुनैन भाई आप बताइए। एक अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। जी हाँ, एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसकी अदायगी कर कर कौन बताएगा? जी उवैस भाई आप अदायगी कर कर बताइए। मीम अलिफ ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या जेर मी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की इन्होंने। सुभान अल्लाह। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है हमजा। क्या लिखा हुआ है? हमजा। अब मैंने इसे हमजा क्यों कहा ये भी बताता चलूं कि लिखा हुआ तो अलिफ है लेकिन फिर भी मैंने इसे हमजा कहा। तो इसके बारे में ये है कि जब अलिफ पर कोई हरकत ना हो तो उसे हम अलिफ कहेंगे, लेकिन जब उस पर कोई हरकत आ जाए, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बर है, तो इसे हम अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि हमजा कहेंगे। क्या कहेंगे? हमजा। हमजा कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज़बर, और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे किस तरह पढ़ते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो कौन बताएगा? जी हसनैन भाई आप बताइए। जिस हर्फ पर जबर हो उसे बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने। तो यहाँ पर भी हम हमजा को बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल। क्या है? दाल। और दाल पर जो आप छोटी सी दाल बनी हुई देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। अब जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ दाल पर जज़म है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहरिक हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रा। और रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। और इस रा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। और इस रा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर खड़ा ज़ेर, और उल्टा पेश। उल्टा पेश। अब खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। अब खड़ी हरकत को हम किस तरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये है कि खड़ी हरकत को भी हम हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींच कर पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर खड़ा ज़बर है तो इसे हम पढ़ेंगे रा, खड़ा ज़बर रा। खड़ा ज़बर रा। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है काफ। क्या है? काफ। ये काफ उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है काफ और दूसरा हर्फ है कौफ। काफ और कौफ, जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक यानी पतला पढ़ेंगे, और जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा कर कर पढ़ेंगे। काफ, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। काफ। 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 और इसे पढ़ेंगे कौफ, कौफ। 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 ठीक है बच्चों? जी। अब यहाँ पर काफ पर कौन सी हरकत है? जबर। ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम काफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। मीम पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और अलिफ से पहले जब ज़बर हो तो वहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे किस तरह पढ़ेंगे। कौन बताएगा? जी अब्दुल कादिर भाई आप बताइए। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने कि अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह।
لیکن यहाँ अलिफ मद्दा तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद वाले हर्फ पर आ रहा है जज़म। क्या आ रहा है? जज़म। क्या आ रहा है? और जज़म वाले हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, लिहाजा यहाँ पर हम मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे और अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हा भी उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे हा और इसे पढ़ेंगे हा। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? जी ओवैस भाई, आप बताइए कि इस हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? हाँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की आपने। जी अब्दुल कादिर भाई, आप जरा इस हर्फ को पढ़कर बताएं। हाँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हा पर कौन सी हरकत है? पेश। कौन सी हरकत है? पेश। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, जिस हर्फ पर पेश हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम हा को इसी तरह पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है त्वा। क्या है? त्वा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है त्वा और दूसरा हर्फ है ता। जब हम त्वा की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे, और जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे त्वा और इसे पढ़ेंगे ता। ठीक है बच्चों? जी जैन भाई, आप जरा इस हर्फ को पढ़कर बताइए। तो माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की आपने। जी हुनैन भाई, आप जरा इस हर्फ को पढ़कर बताइए। ता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने भी अदायगी की। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। क्या है? मीम। और मीम पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम मीम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। ता पर कौन सी हरकत है? पेश। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आप लोगों ने। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम ता को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि प्यारे बच्चों, ये जो आप निशान देख रहे हैं ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज का निशान है? आयत के मुकम्मल होने का। अब जहां भी ये गोल दायरे का निशान हो और उससे पहले वाला हर्फ अगर गोल ता हो तो उसे हम वक्फ में हा साकिन से बदल देंगे। यानी यहाँ पर ता पेश तू नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा साकिन पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब आइए हम इस आयत की हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? तो आप सब मेरे साथ मिलकर हिज्जे करेंगे ना? मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत की हिज्जे करने में शरीक रहिए। तो आइए बच्चों हिज्जे करते हैं। वाव जबर वा, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, मीम अलिफ जबर मा, वमा, वमा, हमजा दाल जबर अद, हमजा दाल जबर अद, रा खड़ा जबर रा, रा खड़ा जबर रा, अद रा, अद रा, काफ जबर का, काफ जबर का, अद रा का, अद रा का, वमा अद रा का, वमा अद रा का, मीम लाम जबर मल, मीम लाम जबर मन, हा पेश हु, हा पेश हु, त्वा जबर त्वा, तो जबर तो, हु त्वा, हुतो, मीम जबर मा, मीम जबर मा, ता पेश तू, ता पेश तु, हु तमा तू, हुतो मतु, आगे वफ हु तमा, आगे वफ हुतो मा, वमा अदराका मल हुतमा। वमा अदराका मल हुतमा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये आयत पढ़ने का तरीका समझ में आया? जी। तो आइए मिलकर ये आयत दोहरा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। वमा अदराका मल हुतमा, वमा अदराका मल हुतमा, वमा अदराका मल हुतमा, वमा अदराका मल हुतमा, वमा अदराका मल हुतमा। वमा अदराका मल हुतमा। जी हुनैन भाई, आप जरा ये आयत पढ़कर बताइए। वमा अदराका मल हुतमा।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की आपने। जी अब्दुल कादिर भाई, आप भी ज़रा ये आयत पढ़कर बताइए। वमा अद्राका मल हुतमा। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे कुरान पाक की इस आयत को सीखने में शरीक रहे। तो मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर यूनुस है और मैं अपने सेगमेंट ज़िक्र नेमत में आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है घोड़ा यानी हॉर्स। घोड़ा एक वफादार जानवर है और एक ज़माने में घोड़ों पर सवार होकर जंगें भी लड़ी जाती थी। घोड़ा हमारे बहुत से मकासद को पूरा करता है। सवारी के लिए घोड़ा भी इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम हिस्सा घोड़ा है और इस पर लोग सवार होते हैं। घोड़े की दुम लंबी होती है, जिस्म के बाल छोटे छोटे, गर्दन लंबी और सर के बाल लंबे और घोड़े का जिस्म निहायत ही मजबूत होता है। घोड़ा खुर से कंधे तक 69 इंच तक लंबा हो सकता है, जबकि इसका वजन 120 kg से 1000 kg तक हो सकता है और घोड़े की मेमोरी बहुत तेज होती है। घोड़े को पानी बहुत पसंद होता है क्योंकि इन्हें प्यास ज्यादा लगती है और ये कई गैलन पानी पी सकते हैं। बेबी हॉर्स पैदा होने के चंद घंटे बाद ही भागने और दौड़ने लगते हैं। घोड़ों की जिंदगी की हद तकरीबन 25 ईयर्स तक होती है और इनके जिस्म के अंदर 205 बोन्स होती हैं। प्यारे बच्चों, इस जमीन पर रहने वाले तमाम मैमल जानवर में घोड़े की आंखें सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं क्योंकि वो इसके सर के साइड पर ही लगी हुई होती है और वो इसी वजह से एक वक्त में 360 डिग्री तक देख सकता है। घोड़ा ऐसा जानवर है जिसे लोग अपने कामकाज में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से घोड़े दुनिया में हर जगह पर पाए जाते हैं। घोड़े इस बात के लिए बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत तेज दौड़ते हैं और इनकी नॉर्मल स्पीड 40 to 48 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन घोड़े की तेज तरीन रफ्तार जो आज तक तारीख का रिकॉर्ड बन चुकी है वो है 88 किलोमीटर पर आवर। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं। मेल हॉर्स को ऑस्ट्रेलियन और फीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं और इसी तरह यंग मेल हॉर्स को कोल्ट कहते हैं और यंग फीमेल हॉर्स को फिली कहते हैं। घोड़ा खास तौर पर घास खाता है, लेकिन इसके अलावा भूसा, दलिया, चारा वगैरह भी खा जाता है। एक अच्छी खुराक वाला घोड़ा अपने वजन का 1 से 2% हिस्सा खाना यानी घास और चारा रोजाना खा लेता है। इन घोड़ों को नमक और मिनरल के ब्लॉक्स भी चटाए जाते हैं ताकि इनकी ग़िज़ाइयत को पूरा किया जा सके। गाय के मुकाबले में घोड़े का एक लेकिन छोटा स्टमक होता है, इसलिए घोड़ा पूरा दिन खाता रहता है। घोड़ा तकरीबन 4 साल में बड़ा हो जाता है। ये सोशल एनिमल है। प्यारे बच्चों, ये ग्रुप की शक्ल में रहते हैं जिन्हें हर्ड्स कहते हैं और इनके रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं। प्यारे बच्चों, घोड़े जंगल में ग्रुप की शक्ल में रहते हैं जिसमें 3 से 20 जानवर होते हैं और इनको स्टैलियन हॉर्स लीड करता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा इस हर्ड में फीमेल्स और इनके बच्चे भी पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में घोड़े की 400 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं और ये घोड़े अंटार्कटिका के अलावा दुनिया की तकरीबन हर मुल्क और बड़े आजम में पाए जाते हैं। इनमें से अरबियन हॉर्स जो अरब से आए हैं, बुजनवी जो रशिया से आए हैं, डेलीबोज अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया से आए हैं, अबासिनियन हॉर्स इथोपिया से आए हैं, कोलोराडो प्लेन्स में पाए जाते हैं। घोड़े छोटे भी होते हैं जिन्हें पोनीज कहते हैं। पोनी घोड़ा खुर से कंधे तक 30 इंच तक हो सकता है और इसका वजन लगभग 54 kg तक हो सकता है। प्यारे बच्चों, मस्टैंग्स घोड़ों को जंगली घोड़ा समझा जाता है, लेकिन ये स्पेनिश घोड़ों की नस्ल में से हैं और इन्हें अरबियन हॉर्स भी कहा जाता है। फेरोज पोनी हॉर्स दुनिया की कदीम तरीन ब्रीड है जो कि दुनिया की नायाब नस्ल मानी जाती है और ये फेरोज आइलैंड में पाई जाती है। घोड़ों की स्पीड 4 किस्म की होती है जिन्हें गैट्स कहते हैं। चहलकदमी यानी आहिस्ता रफ्तार, ट्रूट यानी चहलकदमी से थोड़ा तेज, फिर कैंटर यानी ट्रूट से तेज और गैलप यानी घोड़े की तेज तरीन रफ्तार। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने आपको घोड़े से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जो कि अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने घोड़े के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और नेमत के जिक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،